Adab, good evening. In defiance of the Indian Standard Time that we are used to, we are starting on time. So, good evening to everyone gathered here today to celebrate the revival of a form that might well have been lost to the vestiges of time, if not for the efforts of the collective led by Mahmood Farooqui Sahab. The hall we are in today is also historic in this sense. The C.D. Deshmukh Hall at the India International Center was the place where 21 years ago to the date, on 4th May 2005, we had the first modern retelling of Dastan Goi, the revival performance, and was held, it's performed by Mahmood Farooqui Sahab, Himanshu Tyagi, if I'm not wrong, and produced by Anusha Rizvi Sahiba. Today we return to that date and we acknowledge the role of IIC in providing a platform to that revival. Increasingly, these spaces are becoming fewer, so we are very grateful that we have these spaces and IIC provides us. It's been very kind to us. We had the Shahjahanabad Festival here a couple of years back, and we return here today. We must also thank Vora Sahab and his team then and now. We all love Delhi, I know, but in May it becomes very difficult to love Delhi in May, and for me January as well. But thankfully Vora Sahab is here. He has postponed his plans, and I hope we can hear from you, sir, today a few thoughts. And from that day in May 2005 till today, the cavalcade of Dastan Goi has really progressed. It has moved across the world. And all of us, many of us who don't even come from Urdu in that sense, we have encountered it in different forms, in OTT platforms, in live performances, in imitation as well. But I don't think we have to worry about imitation and derivative performances because that's just a compliment. And it just talks about the influence of Dastan Goi in the cultural landscape, especially in Delhi. I was even told that there's a performance, Dastan Goi performance to be held on Raj Kapoor Sahab. So that modern retelling, how it lends itself to modern retellings is really amazing, and it has become part of our cultural landscape. To mark this occasion, we have organized a special screening, and the documentary that you will see today has been produced by the Anjuman Taraqi Urdu Hind. The film team and Mahmood Saab's Dastan Goi collective, the members of the team will have more expertise to talk about it, so I'll not go into the details. But I was asked specifically by Athar Farooqui Sahab to speak about the Anjuman's role and our collaboration with Mahmood Sahab. I know Dr. Farooqui from my days at OUP, and I was his editor, and we have collaborated on multiple projects since then. And in 2023, when I was at Penguin, we had a discussion. Of course, it was about his book, but I hope that will come out soon from some international platform, if he has some time to spare. But we spoke about this, can we have a space, a platform where different Indian languages, the diversity of Indian languages have come together, and that is how Adab Sarai was born. And we wanted to bring together languages, not just Urdu. Urdu becomes a space for that, but to have an interaction with different languages. When we started that in 2024, we had Jerry Pinto, we had Ranjit Hoskote Sahab, Ratna Pathak Sahiba, then Mustansir Delvi Sahab, and many others, naming just a few. And we spoke about different languages and literatures, but it was not confined to books and book launches and the Western way we understand literature. Literature also lives in the experiences between human beings, in the oral narratives, in theater, in performance. So the Adab Sarai platform was kind of aimed to achieve that. And today's documentary is also a step in that direction, because Anjuman produced it to kind of chronicle what has Mahmood Saab's collective done, how has that
entire revival happened, what has been the challenges, even the minutiae of the details of like why they wear a certain kind of garb that you see, in all of those details, and how does it lend itself to modern retellings, because we don't want Urdu to be, or any language to be, any form to be exotified as we see in on Instagram maybe, just ashar after ashar, just that, and we see it exotified, but we want to see how Dastan Goi, this tradition, this is a lived tradition, how it has been revived and how it continues to shape our, intellectual and literary firmament. From the Anjuman, we have also done multiple other initiatives. We also had a workshop earlier this year on library and archives, bringing experts together. So we want to continue doing multiple things, not just contain ourselves within the bounds of traditionally what is understood as literature. And I also have to thank a couple of other people for their presence here today. Ashok Bajpai Sahab, especially. We know him from his literary achievements, and as he had led the Lalit Kala Academy, the National Academy of the Arts, and various other, he dons multiple hats, but he's been very kind to be present here today. I hope in a future Adab Sarai platform, event, he will feature in it and give us, share with us his literary interests and his experiences. And also Akhtarul Wasi Sahab, who is a life trustee for the Anjuman. And I cannot also stop without thanking Salman Sahab, who's been personally a mentor to us for the Adab Sarai platform. He has been there throughout in each and every one. In the Ranjit Hoskote event, he even conducted the interview, and he's very kind and accommodates us. And I hope he'll also speak today. As I've said again, literature does not only exist in books, it lives in performance, in oral narratives, in theatre. And I hope you will join me in applauding Mahmood Sahab and the Anjuman for sustaining and reimagining these traditions for the future. I would like to now invite Mahmood Sahab to take the proceedings forward. Thank you. Thank you very much, Yasmin. It has been a known fact of India's intellectual culture that a Farooqi is actually best placed to promote another Farooqi. So I want to thank Athar Farooqi Sahab. And more than that, I want to remember the great late Shamsur Rahman Farooqi, whose scholarship and toil of 25 years led to his first book on Dastan Goi, the tradition, Sahiri, Shahi, Sahib Kirani. I read that book in 2000 or so, and I was mesmerized by his scholarship and by his unearthing of a tradition that, despite my education in history and despite my immersion in a little bit of Urdu literature and theatre, I had been completely unaware of. फारूकी साहब की किताब ने, जैसे कहते हैं, मेरे 14 तबक रोशन किए, और उनकी बरकत और उनकी निगहबानी में अनुषा के साथ मिलकर पहला शो मैंने तैयार किया था. बहुत मुझे खुशी है कि ये 4 मई 2005 को जो सिलसिला शुरू हुआ था यहीं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से, उस पौधे को आबो दाना देने में, उस पौधे को हवा देने में, पानी देने में जिन लोगों का बहुत अहम किरदार था, वो सब आज यहाँ मौजूद हैं. बीनू सेन एंड अंकल प्रबीर सेन, who were instrumental in organizing the first show here. Ravikant at CSDS, where Dastan Goi germinated.
My first audiences at home, apart from Anusha, my oldest friend Fazlur Rahman Siddiqui, my brother Mashood is here. There is a lot of people from that very first show. Asad Qidwai is here. Professor Mahfouz has just walked in. Rumi was here for the first show. There were a few other people whose names may be slipping me. But the fact that we had an audience from day one who have seen us through the last 21 years, who have seen our work, who have sustained us, who have been in a dialogue with us, it is only because of that this tradition has reached where it has reached today, where it seems to be forever there. Professor Shahid Amin missed the first show, but he was there for the next show at Sarai, at CSDS. These are people who have been a constant. Without a community which understands what you are trying to do, you can never do your work. A poem exists in conversation with other poems. Similarly, Dastan Goi performances exist because there are listeners who understand what has happened before and what is going to happen forward next. I'm a bit overwhelmed and I feel immense gratitude. I feel immense responsibility and burden that what we have done in the last 21 years is only the beginning. The tradition seems to have found some footing now, and we are very blessed and we are very lucky that there is now Dastan Goi happening in Marathi, in Bengali, in Gujarati, and there can hardly be any greater tribute to the toil and scholarship and work of Janab Shamsur Rahman Farooqi, and it is the best tribute we could pay to him. You will watch the film. There is things said in the film. After that, we'll have a conversation. So I don't wish to speak too much, except to again thank Anjuman Taraqi Urdu Hind and the India International Center for their kindness and their sustained patronage of our form. Thank you very much. ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आंखों के सामने बिल्कुल चलचित्र की भांति चल रहा है ये। हाई कॉन्सेंट्रेशन से हम देख रहे थे कि मतलब हर 2-3 सेकंड में वहाँ खड़ा होता है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत वंडरफुल, अमेजिंग, बहुत ही उम्दा था। देखिए मैं तो उर्दू भी बोलने लगा हूँ अचानक, उर्दू वाला भूत आ गया अंदर। अगर आप आंखें बंद करके उसको सुनोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ करण ने वैसा किया। Very spectacular and moving, and while I don't speak the language, the way in which the poetry was recited and presented reminded me of the fact that the arts are integral and holistic. जब ये कुछ नहीं था, पर्दा नहीं था, फिल्में नहीं थी, स्टेज नहीं था ऐसा, उस वक्त आप लोग, मैंने आपकी कला करें, उस वक्त की कला है जिसको आपने इतना जिंदा रखा है अपने परफॉर्मेंस से। मैं अक्सर सोचता था कि जिन्होंने दास्ताने कर्ण नहीं देखी है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है स्टेज
परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिन्होंने दास्तान मीर नहीं सुनी, उन्होंने दास्तान के बारे में कुछ भी नहीं जाना है। We had an amazing show today. We really enjoyed it. वाह क्या शो था आज, यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बेइंतहा मजा आया, क्या लुत्फ आया है ये मीर पर दास्तान सुनने में। कैफियत जो बोलते हैं ना, एक दीवानी की तारीफ हो जाती है जब भी हम महमूद की दास्तान गोई देखते हैं, और ये तो बहुत ही खास है। एक बहुत ही प्रेवलेंट, एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत पुरानी तहजीब को वो जिंदा कर रहे हैं। मुझे वो देख के बहुत खुशी होती है। जब मैं यहाँ पर आया था, मैं उससे थोड़ा सा बेहतर होके जा रहा हूँ। I really enjoyed the show, and it reminded me of what my parents used to talk about. My grandparents, the stories. वो लार्जली ये 4-5 चीज़ें हैं। पोस्टर हैं, आपके टोट बैग्स हैं, कप्स हैं, डायरीज हैं, नोटबुक्स हैं। आइए ये हेलो कैसे हैं? आइए बिल्कुल ठीक। दास्तान में बहुत अलग बात होगी, And social cultural piece also. अब मैं बोल ही रहा हूँ जो आप मुझे बोलने नहीं देती है। फूल भी तो सेम है, रंग भी तो सेम है। अंदर तक जाएंगे तो दुकान भी सेम निकलेगी। नहीं, मैं कह रहा तुम क्या ज्यादा अंदर जाएंगे तो दिल भी सेम निकलेगा। पिक्टोरियल दास्तान में 20th ईयर कैटलॉग जो होता है, कुछ कॉपी टेबल बुक जिसे बोलते हैं, कैटलॉग, हाँ वही चीज़ होगी, कैटलॉग ऑफ 20 ईयर्स जर्नी। मैं जब कॉलेज में था तो एम्बिशन होता है सबका, मेरा भी था, और बहुत कन्फ्लिक्टिंग तरह का एम्बिशन था। राइटर भी बनना था, फिलोसफर भी बनना था, हिस्टोरियर भी बनना था, एक्टर भी बनना था, थिएटर डायरेक्टर भी बनना था, मूवीज़ में भी जाना था। मतलब इतने सारे जगहों के एम्बिशंस थे, तो मैं ख़ुद भी अपना ही मजाक उड़ाता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ना मुमकिन है कि इतनी जगह इतनी ज़्यादा फील्ड्स में काम कर पाना। यहाँ से जो कल जो आएंगे ना लोग, उनको ये बोलना कि आप पीछे से जाइए, ठीक है, क्योंकि सम पीपल आर सिटिंग ऑलरेडी, सो आप आइए बैठ। महमूद के बारे में क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, मैं उनका बैकग्राउंड ज़रा आपको बताता हूँ। गोरखपुर में एक जुबली स्कूल है घासी कटरा के पास, वहाँ पे ये पढ़े, वहाँ से इन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप ली और दून स्कूल चले गए। फ्रॉम देयर ही कम्स टू सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वहाँ से ही बिकम्स अ रोड स्कॉलर, कम्स टू ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, वहाँ से फिर वो कैम्ब्रिज जाते हैं, वहाँ पे एमफिल करते हैं विद क्रिस बेली, वाज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन। तो वो उनको आप हरफन मौला कह सकते हैं। वो इतिहासकार हैं, वो दास्तान गो हैं, वो फिल्मकार रहे हैं, वो लिटरेरी क्रिटिक हैं, बहुत सारी भूमिकाओं में हमने महमूद फारूकी को देखा है। दास्तान गोई का फ़न उर्दू तहज़ीब, उर्दू ज़बान, उर्दू रवायत की दुनिया का बहुत ही गैर मामूली फ़न है। कम से कम साहित्य और प्रदर्शनकारी कलाओं के क्षेत्र में दास्तान गोई का उभार एक परिघटना है। ये 21वीं सदी की पहली बड़ी परिघटना। शम्सुर रहमान फारूकी साहब का ख़ास तौर से ज़िक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने जदीद ज़माने में दास्तान के फ़न को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इल्मी लिहाज से इस फ़न को दोबारा एक तरह से लोगों के सामने ज़िंदा किया। इसकी शेरियात, इसकी पोइटिक्स बयान की कई वॉल्यूम्स में। Now the most important fact to remember is that the Dastan is an oral narrative. It's not something written. Even if something is written as a Dastan, the intention is to make it heard by the audience. Sometimes somebody will narrate the Dastan before an audience. That is, even if it is a written text, the intention is that it should be
presented, it should be performed before the audience. Most people forget this. फारूकी साहब ही वो शख्स हैं जिन्होंने महमूद फारूकी को दास्तान गोई के फ़न की तरफ राग़िब किया। किताब थी जनाब शमसुर रहमान फारूकी की किताब, दास्तान अमीर हमज़ा का मुताला। ये पहला वॉल्यूम आया था उस वक्त तक, और लिटरली इस किताब ने मेरी ज़िंदगी बदली। फारूकी साहब की किताब जब मैंने पढ़ी तो मेरे, जिसको कहते हैं ना उर्दू में, 14 तबक रोशन हो गए एकदम। कितनी, क्योंकि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किताब थी। वो किताब न सिर्फ वो दास्तान गोई के बारे में किताब थी, पर उसके हवाले से वो किताब थी फ़िक्शन के बारे में, नावल के बारे में, कि मॉडर्न नावल क्या चीज़ है, दास्तान को क्यों आपने मार्जिनलाइज़ किया, क्यों ये गायब हो गई, कितनी बड़ी ये आर्ट फॉर्म थे, कितना बड़ा, कैसे बड़े कमाल के ये परफॉर्मर्स थे। दास्तान का जो ज़ख़ीरा हमारे पास था उर्दू दुनिया में, उसको अब तक किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया था। उर्दू पढ़ने वाला आदमी था मैं, और उर्दू अच्छी खासी उर्दू अदब से दिलचस्पी थी, पर मैंने कभी सुना ही नहीं था दास्तान का नाम, मैंने कभी सुना ही नहीं था दास्तान गोई का नाम। तो वो कहाँ चले गए? सो इट वाज अ ह्यूज डिसअपीयरेंस, यानी एकदम से इनविजिबल हो गई ये ट्रेडिशन। ऐसा फॉर्म जिसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल मैजिकल रियलिज्म, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर देर रात तक या अगली रात फिर से वही कहानी जहाँ छोड़ी थी उस कहानी को आगे चालू कर सकता था दास्तान को। लेकिन वो किस्सा और दास्तान गोई की कला दोनों ही कहीं ना कहीं इतिहास में गुम हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई दास्तान गोई पे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। इधर उधर आर्टिकल्स लिखे, लोगों से मिलता रहा था। उस वक्त तक मेरा कोई इरादा दास्तान गोई परफॉर्म करने का नहीं था, एंड उस पर कुछ करना है ये बात थी। लेकिन क्या करना है ये जहन में एकदम क्लियर नहीं था। पहला शो CSTS का, उसके बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों वाले शो, फिर एक बस्ती मचान पे शो किया था, हालांकि वो बंदर उसमें बैठा हुआ है कॉन्स्टेंटली। तो हमने पहले सोचा था कि हम एक लाइव डेमो करेंगे, जस्ट टू गेट अ सेंस टू द पीपल कि ये होती क्या चीज़ है, ये आर्ट फॉर्म थी, एग्जिस्ट करती थी, डाई डाउन कर गई, और उसकी क्या हिस्ट्री रही है। ये हम एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन हमने सोचा था कि हम करेंगे। तो ये तय हुआ कि एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होगा। फिर IIC से चूँकि था तो IIC ने डेट दी। अब उसकी तैयारी में मुझे लगा कि यार ये तो दास्तान सुनानी चाहिए, ये जो पोर्शन है उसको प्रेजेंट करना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम लोग बातचीत करना शुरू हुए तो पोर्शंस जो महमूद डिस्क्राइब कर रहा था या पढ़ रहा था, तो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि ये मटेरियल है तो परफॉर्मेंस वाला, ये वो मटेरियल नहीं है कि जो आप सिर्फ एक किताब में पढ़ें और अपने तक सीमित रखें। तो सराय की बड़ी कम्युनिटी थी, एक रीडर लिस्ट हुआ करती थी, क्योंकि तब तक तो ना फेसबुक था ना कोई सोशल मीडिया था, लेकिन ईमेल था। तो वो रीडर लिस्ट पे जब मैंने चीज़ें डाली तो उसका बड़ा एंथुजियास्टिक रिसेप्शन मिला मुझे। तो एक तरह की एक कम्युनिटी ने उसको हाथों हाथ उठाया। तो उसी दौरान फिर मेरी मुलाकात हुई, इत्तेफाक था। देखिए, एक चांस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन चीज़ों में। चांस था कि प्रबीर सेन, मेरे दोस्त प्रशांतो चंद्र सेन के फादर, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट IIC के डायरेक्टर थे। Pardon my ignorance, but I had not heard of Dastan Goi. I had not
heard of the performance of Mahmood. My wife, who is my colleague, my batchmate in the IAS, Binu Sen, she said, why don't you ask him to perform Dastan Goi? Now, not having heard, and little nervous I was because it was all in Urdu, and not everyone in the ISC audience knows Urdu. Trying something absolutely new, I was a little nervous, but I decided to give it a chance. पोर्शन प्रेजेंट करने का मतलब ये कि भाई आप पढ़ेंगे टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को कैसे पढ़ेंगे आप? तो टेक्स्ट को याद करके सुनाना चाहिए। तो याद करके सुनाने का मुझे टेक्स्ट पढ़ के मुझे लगा कि यार इसमें तो 2 आदमी करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर इसमें क्या है कि एक इंटरैक्टिव बन जाएगा, एक डायलॉग, एक कैरेक्टर मैं बनता हूँ, एक तू बन। रश्क खुर्शीद थी वो पेशानी, जान से थे 2 चंद नूरानी, कुंचे बीनी वो गुले रुखसार, चमनिस्तान ऐश की थी बहार, बहार को देखते ही शदीद शेफ्ता हुआ। I myself don't know Urdu at all, but I was absolutely mesmerized from the time he started his performance. I didn't understand much of what he was saying, and yet it held us spellbound. It was a grand success. फिर दूसरा आया, उसने भी रंगे जान पर दस्तर खाया और वो भी ये कहता हुआ बेहोश हुआ, मरा कुश्ती या तकबीरे न गुफ्ती, मरा कुश्ती या तकबीरे न गुफ्ती, अजब संगी दिली अल्लाहु अकबर। अब हर तरफ तो जब मैं देख रही थी तो मेरे जहन में ना सिर्फ ज़बान का जो है जादू सर चढ़कर बोल रहा था, बल्कि वो फॉर्म, वो जो फॉर्म है, वो उसमें कितनी बातें कही जा सकती हैं, वो सोच सोच के हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि ये कहाँ छिपी हुई थी ये कला। And it was the traditional Amir Hamza story that was being told. So even though the Urdu was very Persianized and there were a lot of words that one couldn't understand, but the performance itself was completely mesmerizing. I had not seen something like that. 2 people telling you a story. I thought it was something quite fascinating. It was perhaps one of the best performances I've ever seen in my 5 years of directorship of the ISC. So the show went really well. तो शुरू होते ही जो है वो हमारा एक तरह से हाथों हाथ लिया गया, तो इस मामले में हम लोग खुशकिस्मत थे। फर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद फिर आई स्टार्टेड डूइंग द कॉस्ट्यूम्स, देन आई स्टार्टेड डूइंग द सेट एंड फिक्सिंग द सेट कि ये रहेगा, तख्त रहेगा, सिंपल रहेगा, एक स्पॉटलाइट में रहेंगे, 2 लोग रहेंगे। दास्तान गोई ऐसे ही होती थी पहले ज़माने में भी, वो एक्चुअली ऐसे नहीं होती थी, वो बहुत अलग किस्म से होती थी। इट वॉज नॉट प्रोसोनियम थिएटर, नॉर वॉज इट सो बंधा हुआ, नॉट सो फॉर्मल। अब जो दास्तान गोई हम लोग करते हैं उसमें ये जो वाइट क्लोथ्स जैसे फॉर द कॉस्ट्यूम्स जो ये लोग पहन रहे हैं या जो सेट है वो डिवाइस किया गया है, वो इट्स अ मॉडर्न, ऑफ कोर्स इट्स समथिंग दैट आई हैव डिजाइंड ओनली वंस द शो स्टार्टेड हैपनिंग एंड वी बिकेम मोर एंड मोर श्योर कि दिस इज द रूट वी वांट टू टेक। ये अंगरखा है, अगले ज़मानों में ये पहना जाता था, हमने किसी को देखा नहीं था पहनने में। पहला शो हमने कुर्ते पजामा भी किया था, लेकिन टोपी तब भी दोपहरी लगाई थी। तो पहले शो के बाद ये हमने तय किया कि नहीं, हम लोग जो है वो अंगरखा सिलवाते हैं। तो लखनऊ में अंगरखा सिलवाया, तो अंगरखा बना। रिवाइव करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं जी दिल्ली में 2 लोग हैं वो करते हैं। रिवाइव तो तब होगा जब हर शहर में, हर जगह लोग करने वाले पैदा हों। अब वो मेरा जो मंसूबा था, जो मेरा जो अज़्म था, जो एम्बिशन थी, वो उस ज़माने में थी, वो अलग तरह से थी, मैं उसको फैलाना चाहता था। लोग करना भी चाहते थे और मैं भी और लोगों को फैलाना चाहता था, तो मैंने वर्कशॉप करनी शुरू की। बॉम्बे में वर्कशॉप की 2009 में। 2009 में पार्टीशन की दास्तान की थी इन्होंने और तिलिस्म खुशरुबा की एक दास्तान की थी। शो देखा, वो
और मैं महमूद जी के पास गया, मैंने बोला महमूद जी शो बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ये करना है। तो बोलते अरे तुमको समझ में नहीं आया फिर भी करना है। हम बोल बस यही करना है। फिर इत्तेफाक से 2009 में फिर पृथ्वी हाउस में इन्होंने 3 दिन की वर्कशॉप रखी थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम ऐसा कर रहे हैं, तुम टाइम हो तो वापस तुम आ जाओ। तो हम तो तके हुए थे इस चीज़ के लिए। तो बस फिर वो वर्कशॉप हुई, उसमें राजेश उस टाइम राजेश के पास चश्मा नहीं था, अभी चश्मा हो गया। बॉम्बे टॉकीज में 200 रुपये की मामूली तनख्वाह पर जाके काम करने लगे। अब जब ये बात पापा जी की है, मैं ज़्यादा हूँ, तुम पृथ्वी थिएटर छोड़ के मत जाओ, तुम यहाँ के। तो मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं हिमांशु और शालिनी, उन्होंने मुझे बताया कि महमूद फारूकी साहब दास्तान गोई के वर्कशॉप कर रहे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं वर्कशॉप जिस दिन था उस दिन मैं पहुंचा वहाँ पर। 3 या 4 दिन की वर्कशॉप की, हम लोग वो वर्कशॉप को ज्वाइन किया और 3-4 दिन में बहुत मज़ा आया। और फिर पहली दास्तान जो हमने की थी, मैंने और रसिका दुबे ने महताब जादू की दास्तान की थी। दास्तान हुई से मेरी ऐसी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, मतलब आज है ना, अगर नहीं तो 2-4 बैठक और लगा लो, है ना। अब आपने बोल दिया तो देख लेंगे। मैं 2007 में पहला परफॉर्मेंस देखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में शो हुआ था एक, जिसमें हबीब तनवीर साहब थिएटर के बड़े डायरेक्टर थे, वो मौजूद थे, और शमसुर रहमान फारूकी साहब, जिनकी वजह से हम सब यहाँ दास्तान गोई की महफिल में मौजूद हैं। तो ये दोनों वहाँ मौजूद थे, बड़े लोग, और वहाँ उस माहौल में मैंने एक कुछ मैजिक सा मुझे नज़र आया, और मुझे लगा कि इस फ़न में जो है मैं अपनी तकदीर आजमा सकता हूँ। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती हुई औरत की तस्वीर देखते ही उसकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे। ये तस्वीर आजकल कई जगह चर्चा का विषय बनी हुई थी। यहाँ लिटरेचर भी है, यहाँ तहजीब भी है, यहाँ म्यूज़िक भी है, यहाँ आर्ट भी है, और यहाँ कल्चर भी है। यहाँ तमाम चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं और लोगों को अपनी बात सुना सकते हैं, लोगों से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जगह जगह मकानों की दीवारों पर गेरू रंग से लिख दिया गया था कि मलेरिया को ख़त्म करने में हमारी मदद करो, मच्छरों को समाप्त हो जाए। फिर 2 तरह से फैलाने की बात थी, नए करने वाले हों और नई तरह की चीज़ें सुनाने की हों। नन्ही एलिस, प्यारी एलिस, 36 नखरों वाली एलिस। कैमरे में बताओ तुम्हें कौन सी दास्तान सबसे अच्छी लगती है? किसकी? अमीर हमजा की? और कर्ण की? और कौन सी अच्छी लगती है? एलिस। ओके, और महमूद ने जब काम करना शुरू किया था तो वो जो फॉर्म है, उस फॉर्म में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा थी। और उन्होंने बोला कि उस फॉर्म को हम तभी समझ पाएंगे जब हम आज के अहद की, आपकी और हमारी बात करें। करके दिखाना है, बोल के समझाना है, लिख के बताना है, 3 चीज़ें करनी है। वो बच्चे जो इस दौर में जवान हुए, जीस्त और मौत के हंगामे के परे, उन्होंने एक नई दुनिया का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। एक ऐसी दुनिया का ख्वाब जिसमें इंसाफ हो, बराबरी हो। मेरा नाम नमिता सिंघई है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और करीब 30 साल से नौकरी करती आई हूँ। ऐसे ही बातचीत करते हुए एक बार दफ्तर में मेरे साथ में एक मेरे दोस्त काम करते थे, वो एस्पायरिंग स्क्रीन राइटर था। तो मैं उससे बात कर रही थी, मैंने बोला यार ज़बरदस्त है कि तुम हिंदी में स्क्रिप्ट लिख रहे हो। मैं भी एक्चुअली उर्दू समझना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे उनने शायरी उर्दू में लिखी हुई है। तो मैंने कहा मेरे को ना उनकी शायरी पढ़ने का बड़ा मन है, मुझे उर्दू में कुछ काम करना है। तो उसने बोला अरे मैं ना स्क्रीन राइटिंग अनुषा रिजवी हैं, उनसे कुछ सीख रहा हूँ। तो उनके जो हस्बैंड हैं महमूद फारूकी, वो कुछ उर्दू में काम करते हैं और मुझे मालूम है कि उनके यहाँ हर थर्सडे को बैठक होती है। क्या बात है, मनीष जी बाहर आ गए तो उनसे तो मिल ही सकता। मनीष सर आई थिंक काफी काम मत करते होंगे। पहले तो एब्सोल्यूट पॉडकास्ट मैंने महमूद को ईमेल लिखी,
And Mahmood was very kind. He said कि हाँ बिल्कुल come and join us this Thursday. और इस तरह मैं पहली बार महमूद के घर में दास्तान गोई की बैठक में गई. I thought कि हम maybe we can also engage some event planner, event company जो events organize करती है. जो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि अरे ये क्या है, इट्स सो वेरी सिंपल, इसमें दो लोग सफ़ेद कपड़े पहन के बैठे हैं और बस बोल रहे हैं. जब हम लोग साथ बैठते हैं दास्तान गोई के बारे में बात करने की, कोई नया आइडिया आता है कि इस पे दास्तान करनी है, उसके बाद रिसर्च शुरू होती है. रिसर्च करने के दौरान जो है वो हज़ारों पन्ने खंगाले जाते हैं, फिर उसमें से निकाला जाता है कि क्या निकाल सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं. महमूद फारूकी ने तो 200 पेज लिख दिए थे रात दरबारी तैयार करते वक्त. मंटो के ऊपर दास्तान लिख रहे थे तो उसमें भी वही हाल था. उन्होंने 200 पेज लिख दिए, फिर बाद में उसको छोटा करते 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 हमने उसे 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस बनाई थी. जो सिंपल चीज़ लग रही है ना, वो एक्चुअली बहुत मुश्किल होती है. उसको सिंपल बनाया गया है और वो सिंपल बनाने का प्रोसेस कि आपको लगे सिंपल है, आपको समझ में आ जाए, वो प्रोसेस बहुत मुश्किल है और डिफ़िकल्ट है. लग गई चुप उसको मेरे शोर से, ये न समझा है खुदा की ओर से. नाम से मेरी हसद करने लगा, रश के शोहरत से मेरी मरने लगा. अरे एक दो ही होते हैं खुश तर्ज तौर, अब चुनाचे मीर मिर्जा का है दौर. बैठ कहना चाहता था बेहुनर, शायरी समझा है क्या खाला का घर, शायरी समझा है क्या खाला का घर, शायरी समझा है क्या खाला का घर. So it's the art of conversation, which is communication carried to such a beautiful extent of real efflorescence, where history, thought, memory, fun, kataksh, everything is. So the human voice then becomes the conveyor. So हमारी दास्तान गोई की वजह से एक ऐसा फॉर्म डेवलप हुआ है जिसमें बात उस तरह से कह सकते हैं जैसे पहले उसकी नहीं कही जा सकती. तो बात को कहने का एक नया तरीका हम लोगों ने इजाद किया. उस टाइम तो आवाज़ हम लोग की इतनी नहीं खुली हुई थी और बहुत सारी उसमें रिहर्सल्स में ज़्यादातर जो जद्दोजहद थी वो आवाज़ को ही लेकर के होती थी. तो महमूद सर जो है वो दूसरे कमरे में चले जाते थे और हम लोग उनका जो मेन हॉल था जहाँ पे रिहर्सल होती थी वहाँ से हम लोग दास्तान सुनाते थे. वो 2-3 कमरे बाद उधर बैठ के सुन रहे होते थे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है. कौन कह सकता है ये सब कैसे हुआ, ये जमीन आसमान सूरज चांद सितारे ये कायनात किसी ने बनाए या खुद ही आए, वही जानता होगा या शायद उसको भी नहीं पता. 2014 में के आसपास एक वर्कशॉप हुई थी. उस वक्त सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी. उस वक्त एक वर्कशॉप का अनाउंसमेंट हुआ था और मैं उस वर्कशॉप में गई और वहाँ से मुझे दास्तान गोई पता लगा और उसकी वर्कशॉप का सफ़र शुरू हुआ. 10 साल हो गए मुझे दास्तान गोई करते हुए और 8 साल से मैं एक दफ्तर में जाके नौकरी करती हूँ. किताब में जो अल्फाज लिखे गए हैं वो और उनको जब बयां करते हो तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. उस चीज़ से मुझे बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनसियत थी. इस वजह से मैं दास्तान गोई से जुड़ी. ईरान के नक्शे को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो बिल्ली की ही सूरत का बना हुआ है. As far as this revival is concerned, right from the beginning we had absolutely no constraints about who is going to be performing. And now पूनम for instance तो हमारे साथ बहुत अब तो मेरे ख्याल में 12, 13, 15 सालों से जुड़ी हुई है.
and she's one of the senior most performers. बाकी सब एनी, नुसरत, आमना, नमिता, मीरा, तो ये बहुत बड़ा एक तादाद है औरतों की जो हमारे साथ परफॉर्म करती है. इट्स अ स्किल, इट्स अ टैलेंट, इट्स नथिंग टू डू विद जेंडर. दास्तानों की खासियत है एक्सटेम्पोर होना, कि आपको ऐसा ना लगे आपने स्क्रिप्ट को याद करके सुनाया है, वो ऐसा लगे कि बस आमद हुई और आपने बयान कर दिया. तो फिल्म फॉर होना जो है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी कि वो रटे रटाए शब्दों की तरह से ना आए. नदी के किनारे सोच में पड़ गई कि अब इस फिल्म को कैसे रिहर्सल जो है ना कैमरा देख के जो है ना पिछले 2 घंटे से की जा रही है. फुटेज देखे के बस अपने मन को खड़ा किया और एक पैर पानी में उतारा, फिर दूसरा ये जा वो जा, नदी के उस पार चली गई. उस पार एक लंबे अरसे तक तो मेरी ज़बान लरसती थी कहते हुए कि मैं दास्तान गो हूँ, क्योंकि आप उस तरह से मुकम्मल तरीके से दास्तान गो नहीं बने थे तब तक. आप तो लिखी हुई दास्तानों को ही याद करके सिर्फ सुना रहे थे. पहली दफ़ा मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई थी ये कहने की कि मैं एक दास्तान गो हूँ, जब मैंने खुद अपनी पहली दास्तान जो है उसे बुना, और तब मुझे लगा कि मैं एक सीढ़ी जो है चढ़ पाई हूँ. तो ठीक है, मैं कम से कम जो है मेरे पास वो सीढ़ी है जिस तरह मैं खड़ी हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मैं एक दास्तान गो हूँ. मैं दास्तान गोई से उस वक्त से एसोसिएटेड हूँ जब वो एक, जैसे कहते हैं ना, अंकुरित हुआ था पौधा महमूद के दिमाग में. तहजीब का खुरच के हर एक गाज़ाए फरेब, इंसान का इंतकाम लिया है तमाम. मैं थिएटर स्कूल में किया था, उसके बाद से तो कभी स्टेज पे गई नहीं थी, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी. बट इन्होंने उकसाया तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है. तो जो हमने ट्राई किया तो उसमें मज़ा आया खूब, तो बस उसके बाद से एडिक्शन हो गया, तो अब हम करते हैं. इस दौर में बजुर्रते रिंदाना दिल की बात कहता रहा था कोई, तो मंटो था उसका नाम. मेरा नाम उदित यादव है. मैं यूपी के एक छोटे से शहर मैनपुरी से हूँ. पहली बार जब पर्दे को खुलते हुए देखा तो वो एक एक्सपीरियंस काफ़ी वो ऐसा है गूज़बम्स वाला. मैं कई महीनों तक महमूद सर के पीछे पड़ा रहा कि मैं आना चाहता हूँ. उन्होंने कहा हाँ ठीक है, दिखते रहना. तो उसका मतलब ये था कि जो शोज़ होते रहते हैं उसमें आते रहना. तो मैं जाता रहा, शोज़ होते थे, आखिर में हाज़िरी लगाने के लिए कि मैं आया था देखने के लिए, उनसे मिलता था. फिर कुछ शायद 5-6 महीने 6-7 महीने बाद उन्होंने कहा कि ठीक है कल मीटिंग होगी तो उसमें आ जाना. यहाँ से फिर शुरुआत हुई दास्तान गोई की. रोने से फारिग होने के बाद उन्होंने बड़ी संजीदगी से मुझसे पूछा, सादा तुम ज़्यादा क्यों नहीं कमाते? मैंने कहा ज़्यादा कमा के क्या करूँगा बीवी जान, जितना कमा रहा हूँ मेरी ज़ात के लिए काफ़ी है. और यहाँ पर ख़ासियत है दास्तान गोई कलेक्टिव की और महमूद सर की कि वो, क्योंकि दास्तानें तो 2 तरह की लिखी गई हैं, एक जो रिवायती दास्तानें हैं और एक जो आज के टाइम में जदीद दास्तानें जिनको हम कहते हैं. तो जदीद क्योंकि आसान ज़बान में होती है तो हर कोई आसानी से उसको पिक कर सकता है. तो वो चाहते ये हैं कि आप रिवायती दास्तानें जो हैं, जो अमीर हमज़ा की दास्तानें हैं, उनसे शुरुआत करें. तो पहला शो, चाहे आप कोई भी हैं, कहीं से भी आए हैं, पहला शो आपका रिवायती दास्तान का होगा. 6 किए थे, कितने 5 किए थे. फिर फरवरी में अभी फिर से हम आ गए हैं, बिकॉज आपका कंटेंट है, आप ही को उसे प्रमोट करना पड़ेगा. आप ही को पता है स्टोरी में क्या है, उस स्टोरी को कैसे हम हुक बना के पेश करें. ठीक है, सो यू हैव टू डिवाइज वेज टू डू दिस फॉर योर ओन स्टोरीज, फॉर योर ओन शोज. तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या हो गया? बस वो जुकाम और आज शो है तुम्हारा. मेरा नाम उस्मान है. मुझे कहानियाँ कहना अच्छा लगता हो, कोई भी माध्यम हो,
वो मैं ओरल कह रहा हूँ या मैं ऑडियो विजुअल के माध्यम से बोल रहा हूँ या कुछ भी हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, तो हाँ मैं एक स्टोरी टेलर आप बोल सकते हैं। बिकलवारिन, ज़रा इधर आओ, थोड़ी शराब देती जाओ। हाजरीन, उस नाज़नी ने थोड़ा सा घूंघट हटाकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, ये शराब बिकाऊ नहीं है। तो उसमें एक तो ये रहता है कि आप एक राब्ता होता है कलेक्टिव का और आपका, आप साथ में रहते हैं, सीखते हैं, देखते हैं परफॉर्मेंस बैक स्टेज से, उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे फिर आप तैयार करते हैं, थोड़ा ग्रूम किया जाता है आपको, और जब देखा जाता है कि आप स्टेज के लिए तैयार हैं फिर आपको जो है आप स्टेज पर जाते हैं। तो शुरुआत हमने तिलिस्म होशरुबा रिवायती दास्तान से किया, फिर चौबोली किया और फिर गांधी किया और तमाम ऐसे चलता रहा सिलसिला। हाँ, फिर कौन गई है? 9 इंच की इतनी बड़ी आई है वो चौथे घर में, घर चलने है 3। I think it's more personal for me. I have seen myself improve in terms of confidence, in terms of how to communicate, in terms of articulation. पहुंचना चाहती हूँ रानी, मैं जिस यहाँ पे आपका रोल बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, आप एक्टर भी हैं, आपको अपना प्रमोशन भी करना है, तो therefore you are getting that opportunity to do that. You also have to manage the production, you also have to network with people, you also need to pitch your shows here and there and get funding if required. तो बहुत सारे diverse roles आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं. So why not? It's a very good place to build yourself. हजारों तरह की स्टोरीज हिंदुस्तान में हैं, चल रही हैं, पुराने ज़माने से भी चलती आ रही हैं। बेताल पचीसी भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है, सिंहासन बत्तीसी भी है, कथा सरित सागर भी है, आल्हा उदल भी है, पांडवानी भी है, बंगाल की स्टोरीज़ हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की स्टोरीज़ हैं, यहाँ पे हीर रांझा भी है, यहाँ पे सोनी महिवाल भी है, लैला मजनू भी है। तो बहुत तरह की स्टोरीज़ हैं। अब उतने तरह की स्टोरीज़ को, सारी स्टोरीज़ को कैसे पेश किया जाए और कितनी तरह की स्टोरीज़ को पेश किया जाए, ये हमारे सामने था दूसरा चैलेंज। नए परफॉर्मेंस पैदा करना और नए तरह की स्टोरीज़ क्रिएट करना, एंड दे बोथ हैड challenges of their own. How to do that? महमूद फारूकी और उनके दोस्तों ने लेकिन न सिर्फ रिवाइव किया बल्कि उसको नए नए आयाम दिए, जैसे दास्तान कर्ण जिसको हमने सुना है, जो कि महाभारत की कहानी है और दिलचस्प कहानी है। कर्ण को न सिर्फ महाभारत से लिया बल्कि उन लोगों से भी लिया जिन्होंने कर्ण को पर लिखा है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी नाम की एक रचना लिखी, तो वहाँ से भी कविता उठाई, कर्ण की कहानी उठाई, उसको डाल दिया। दीपित ललाट से और कवच कुंडल से पढ़ो से जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, है मेरा इतिहास, है मेरा इतिहास। अब जाके भैया मेरी लाइन रिहर्सल पूरी हुई, समझे। सुबह से कोई मिलने आ गया, फिर जसविंदर जी आ गए, फिर खाना खाने गए, फिर लेटना थोड़ी देर था। बस सर में दर्द हो रहा है नींद की कमी की वजह से, पर निकल जाएगा अब इंशाल्लाह। यहाँ बहुत शोज कर चुके हैं, कर्ण किया है, राग दरबारी किया है, नैना किया है, तिलिस्म होशरुबा किया है, और रेत समाधि किया है, रास्ताने रजा किया है, रास्ताने मीर किया है। कदरदान है यहाँ, लोग सुनने वाले हैं, पहचानते हैं, बुलाते हैं, तो करते रहते हैं। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था जब तुमने एक अबोध बालक अभिमन्यु की नृशंस हत्या करने की कोशिश की थी? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था जब तुमने छल में जुए में युधिष्ठिर को हराया था? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था जब एक कपड़े में लिपट के जसवंता द्रौपदी को तुम भरे दरबार में घूर घूर कर देख रहे थे? अब तुम्हें धर्म याद आता है? यही मार अर्जुन,
यही समय है। अर्जुन असमंजस थे, भगवान चिल्लाए, कहूँ जो पाल उसको धर्म है ये, अनंत शत्रु का सत्कर्म है ये, कर्म को छोड़ चिंतन में फंसेगा, पलट कर काल तुझको ही फंसेगा। तब अर्जुन ने वो आंचलिक नाम का बाण निकाला और गांधी पर चढ़ाया। बाण का चढ़ाना था, चराचर जगत डोलने लगा, सब चरित्र परिंद अपने दिलों में छुप गए। हर आदमी अपनी जान बचाने को भागा। उस अंधेरे में सोने चांदी से चमकता मुंह अर्जुन ने छोड़ा। नन्हे जमीन पर बैठे जाकर भगवान की गर्दन पर लगा। गर्दन उसकी गर्दन से जुड़ा हुई, उसके सर ने उसके धड़ को छोड़ा। वो धड़ धराशायी हुआ। This is also a triumph of memory, not just memorizing, triumph of memory over the textual. आप आए, बैठे, सफेद कपड़े अच्छे, टोपी, एक लगाइए क्षमा और शुरू हो जाइए। आपने लिखा है, आपको पढ़ा है, you can make diversions. So in some ways ये हिंदुस्तान का एक novel contribution है to the art of communication, to the art of performance. जलियाँ जब होता है तो क्यों लोग रोते हैं? क्योंकि कोई विजुअल नहीं है उनके सामने, सिर्फ दो परफॉर्मर्स हैं जो उसकी कहानी आपको सुना रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से सुना रहे हैं कि आप खुद जलियांवाला बाग में मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं और कुएं में कूद रहे हैं या दीवार फांद रहे हैं, वो उनको दिखने लगती हैं मुझे। अभी कर्फ्यू ना हुआ था। कूचा रामदास की 2 मुसलमान औरतें, एक हिंदू औरत, एक सिख औरत बाजार में सब्जी खरीदने गए। उन्हें जल्द लौटना था, कर्फ्यू शुरू होने वाला था, लेकिन सौदा खरीदते बातें करते उन्हें देर। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि कभी थिएटर ही नहीं किया था स्कूल में। हमेशा उस तरह की थी जैसे स्टेज फ्राइट था। क्योंकि मेरी दोस्तों ने पहले ज्वाइन की, वर्कशॉप्स अटेंड की और दे नीडेड अ पार्टनर, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया ज्वाइन करने के लिए। तो उस चक्कर में मैं आ गई। 2 साल तक वी डिडंट गेट अ शो। इट्स आफ्टर 2 इयर्स के, और मैं जैसी थी, मेरी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, तो वो बेसिक ट्रेनिंग के हाउ टू थ्रो योर वॉइस, वो सब सीखना पड़ा। उसके बाद हमें लगातार कई जल्दी शोज़ मिले, लेकिन इनिशियल जो था पीरियड, वो 2 साल हमने एक दास्तान 25 मिनट की वो किए, सिर्फ रिहर्सल। उधम सिंह ने एक आदमी को पहचाना, उसे जिम्मेदार ठहराया, लेकिन गांधी ने डायर को माफ़ किया और उस निज़ाम को चुनौती देनी चाहिए जिससे डायर और ड्वायर निकले थे। उस व्यवस्था को दोषी करार दिया जिसने उन्हें बेगुनाह बताया। उस खूनी सोच पे चोट करनी चाहिए जो उनके साथ खड़ी थी। जैसे मैंने दास्तान जलियाँ लिखी है, तो मेरी ट्रेनिंग एज अ हिस्टोरियन बहुत ज़रूरी थी मुझे। मैं अलग अलग तरह की नज़रिए साथ ला पाई, मैं अलग अलग सोर्सेस को पढ़ पाई। मैं मंटो और कृष्ण चंद्र को साथ ला पाई, लेकिन मैं हंटर कमीशन को भी साथ लाई हूँ। हंटर कमीशन में क्या लिखा गया था उसको साथ लाई हूँ। तो वो मेरी ट्रेनिंग एज ए हिस्टोरियन मुझे वो देती है कि मैं ये दास्तान लिख सकूँ। हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुना रहे हैं, हम हिस्ट्री को क्लासरूम से निकाल के बाहर लाते हैं, ऑडियंस के सामने लाते हैं। और जो ऑडियंस एकेडमिक नहीं है या उससे उसका पाला नहीं है, हम उन ऑडियंसेस को के सामने क्लासरूम की हिस्ट्री लाके उनको उनकी ज़बान में सुनाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसा आर्ट है कि जिसमें सिर्फ इंसान की लगन ही उसको इस आर्ट को इस तरह से पॉसिबल, इस तरह से एडवांस ये कर सकती है। कोई परफॉर्मर ऐसे करके नहीं निकल सकता दास्तान गोई। दास्तान गोई के लिए बहुत रियाज चाहिए और आपको कमिटमेंट चाहिए, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जो बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रहा, जिसकी लगन ने उसको यहाँ तक पहुँचाया कि आज लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई कौन सी नई दास्तान आ रही है। जीती रहो। एक बहुत बढ़िया, बहुत ही बचपन को क्या उठाया है, बहुत जबरदस्त दोनों ने बहुत ही बढ़िया।
दास्तान गोई कलेक्टिव एक ऐसी जगह है जहां दोस्तों का जमावड़ा होता है। यहां सब दोस्त लोग हैं। तो पहले दोस्ती होती है, उसके बाद काम शुरू होता है। एक दूसरे की खिंचाई चल रही होती है, एक दूसरे पे मजाक कर रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं, हंसते हैं, गाते हैं साथ साथ। तू है दिल जरा दिखला के तू, कैदी भी है वहशी भी है, कैदी भी है वहशी भी है, जख्मी भी है जिंदा 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 भी है। चलो सर, हैप्पी बर्थडे उषा। Thank you. Thank you. Happy birthday to our producer. अनुषा जी का बर्थडे है तो केक काटेंगे हम पहले। Happy birthday to you. Happy birthday. कलाई बिलौरी के जिसके देखने से दास्तान में चाहता हूँ कि हर साल 4 लिखूं और ये लोग खूब परफॉर्म करें और खूब आगे बढ़ें, तालियां बजें। महमूद फारूकी का नाम, दास्तान गोई कलेक्टिव का काम बढ़ता रहे, पूरी दुनिया में जाए। और आर्ट फॉर्म तो यार जो लॉस को इन्होंने बचाया है, उस बचाने की कोशिश को लोग समझें। मैं उस दौर की पैदाइश हूँ जिस दौर में बहुत कम औरतें बोलती थी, तो हमको कई अब तो डेकेड्स बीत गए हैं बोलते बोलते, तो दास्तान गोई मेरे लिए और एक मौका है। और मुझे लगता है सारी विमेन दास्तान गो जो हम लोग हैं, हम सब इसलिए इतने इन्वॉल्व हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जहां हम एक वुमन के नज़रिए से दास्तान को पेश कर सके। दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मीडियम्स वेयर एक्सप्रेशन इज़ की एंड इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट स्पेस वेयर आई फील एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे लिए अगर कोई पूछता है कि आपका अचीवमेंट क्या रहा है ज़िंदगी में, तो मैं यही कहूँगा कि बचपन में मैंने रामलीला नौटंकी की, फिर इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन सबसे बड़ा इप्टा जो है, मैंने वहाँ काम किया और मैं हबीब साहब के साथ आया। मेरी बड़ी खुशनसीबी थी कि मैंने उनके साथ काम किया और जो कुछ बचा वो दास्तान गोई कलेक्टिव ने मेरा पूरा कर दिया। बमुश्किल हमें कुछ 12-13 साल हुए हैं थीसिस में, और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अभी तो हम लोग बिल्कुल नर्सरी में हैं दास्तानों के स्कूल के, अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है। और अगर किसी ने खिलाफवर्जी की तो क्या हुआ कि एक गुरुजी थे और एक चेला था। अब घूम घूम करके हम दास्तान कर रहे हैं, इसमें मजा आ रहा है। पहले जमाने में जिस तरह से टोली निकलती थी थिएटर करने वालों की, पारसी थिएटर हुआ करता था, तो वो घूम घूम करके नाटक किया करते थे। हम घूम घूम करके दास्तानें सुनाते हैं और उसमें मजा आता है, सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी। तो ये सिलसिला चलता रहे, बहुत अच्छा है। भारत में पूरी जगह कवर कर चुके हैं, इंडिया में, अब्रॉड में, जापान जा चुके हैं हम लोग, लंदन, यूएस, सिंगापुर, मलेशिया, हर जगह पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सूर्य नारायण की महात्म्य क्या है। जब शहर के शहर जलाए गए, घर के घर जलाए गए, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब हर एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हम पहुंचना चाह रहे हैं, हर जगह दास्तान गोई का परचम लहराना चाह रहे हैं। पहली बात मैंने आधी देखी लेकिन बहुत अच्छी लगी, एटलीस्ट जो कुछ समझ सकती हूँ उसके हिसाब से तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। No, it was my second time and it was absolutely wonderful. I've read Rag Darbari and I think they did an amazing job adapting it. It was amazing. बहुत अच्छा लगा. I am here for Rag Darbari and it's always a pleasure. I've seen most of their earlier also because it's not only about a performance, it's about a tradition
and it's about the responsibility of taking the tradition ahead. So I have a soft corner for Dastan Goi any which ways. So it was wonderful, very thoroughly entertaining and very, very nice. I am at loss of words right now because इतना ये इन्होंने सब इनके दिमाग में इतना इन्होंने बसाकर इसे सामने प्रस्तुत किया कंटिन्यूअस हमारे सामने. आई एम ओवरवेल्म्ड बाय जस्ट द sheer theater of it, and I'm just all praise. I'm overwhelmed by how brilliant this was. No, I enjoyed every part of it. I think it's a classic book. Anybody who's read Hindi literature and Rag Darbari or Srilal Shukla would recognize. But it's been adopted and it's so contemporary, so fresh, and of course it's biting, and the social reality is explained in a way in which we can also laugh at ourselves, and I think that's the best part of it. Mahmood has always been this very inspirational figure. Even when he was in college, he was my junior. It was a hugely inspirational figure as far as performance art goes. So it was a wonderful performance. दास्तान जलियाँ बहुत अच्छी, जलियाँ वाला बाग बहुत अच्छी, बहुत फैंटास्टिक. मैंने एक्सीडेंटली देखा जलियांवाला बाग की दास्तान देखा, और ये मेरा दूसरा बार मैं दास्तान गोई दिख रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा. और पहली बार मैंने फीमेल एक्ट्रेस को परफॉर्म करते हुए देखा इसमें, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया. इनका जो आगाज़ है, जो इनका एक संदेश है, वो पूरे कोने कोने तक जाए. हमारी शुभकामनाएं हैं इनके सब दास्तान गोई के सभी मेंबर्स के लिए. हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. मेरा तो फुल जैसे कहते हैं कि शनिवार की शाम अपने समय निकाला, इससे बेहतर पैसा वसूल नहीं हो सकता था. थैंक यू सो मच. Very well written, extremely well performed, and very well directed. I mean, it's very nice. I think it's one of the best shows that I've seen at Picture Theatre so far. I learnt a lot more than I knew, so I think it was worth seeing for sure. कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया. दास्तान गोई के तो जो भी शो होता है, I don't miss. I've seen all of it, almost. महमूद फारूकी का जो भाषा ज्ञान है, जो उनको वेदों शास्त्रों का ज्ञान है, और जिसको वो इतने अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, और जो सारी चीज़ों को एक साथ वीव टुगेदर करते हैं, इज़ फिनोमिनल. बस मैं ये कहूँगा कि ऐसी कहानियाँ कही जाती रहनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी नशे में हूँ. आप समझ लीजिए कि कल मैं राग दरबारी देख कर गया, और वो कहते हैं ना शराबी को कि उतारा मिला नहीं, और फिर से मैं खाने में बैठ गया. तो मैं कल के नशे में था और फिर आज आया हूँ और मैं पी के जा रहा हूँ. ये सुरूर है महमूद साहब. To be able to tell the story of partition with warmth, with hope, I'm just absolutely stunned and absolutely phenomenal that I came here. So I'm so fortunate and feeling so glad that I came. Please come and watch it. Mahmood is magnetic, brilliant, like just amazing. Congratulations to Mahmood Farooqi, Anusha and the entire team for this gorgeous art that they have revived, that they have breathed new life into. मेरे ख्याल से अगर आपको कहानियाँ सुनने और सुनाने का शौक़ है, अगर आपको परफॉर्मेंस जो नाट्य शास्त्र है उसका प्योरेस्ट फॉर्म देखना है, और अगर आपको लफ्ज़ों से प्यार है, अगर आपको उर्दू से, संस्कृत से, हिंदी से, और इन सब के जो एक जो डांस चलता है इनके बीच में दास्तान गोई के परफॉर्मेंस में, प्लीज़ आई अर्ज यू, आप खुद आइए, अपने फैमिलीज़ को लाइए, अपने बच्चों को लाइए. यहाँ पे बच्चों के लिए भी परफॉर्मेंस है, बट गिव योरसेल्फ दिस गिफ्ट. बीबी मुझे, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, नहीं पता मुझे कौन रहेगा मेरे साथ, नहीं रहेगा, लेकिन भाई मेरा जो काम है वो तो मुझे करना है, तो वो तो फैलाना तो ही है इसको. खुशामदीद खाकसार को महमूद फारूकी कहते हैं, और कुदरत ने मुझ अहकरुल-इबाद को इस काम के लिए चुना कि दास्तान गोई को मैं दोबारा ज़िंदा करूं. और ये काम सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि मेरे सामने जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब की स्कॉलरशिप थी, जो बिलाशुबा हमारे अहद के, उर्दू के ही नहीं, हिंदुस्तान की तकरीबन हर ज़बान को मिला के मैं कहूँ तो हमारे अहद के सबसे अबकरी
सबसे ज़्यादा बड़े आलिमों में से एक थे। तो मियाँ ये नियति की बात है कि ये महमूद फ़ारूकी जो बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं, सुना होगा आपने, ऑक्सफोर्ड तक पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ बड़ा नाम वाम कमाया इन्होंने, मालूम है कई रिकॉर्ड तोड़ दिए सब लोगों ने, बड़ा बुरा हाल हो गया। फिर वहाँ से वो कैम्ब्रिज भी चले गए, वहाँ भी कुछ पढ़ के आए। तो यहाँ घूमते फिरते थे कि इनका ख्याल था कि मैं ड्रामा लिखूँगा, ड्रामा करूँगा, टीवी करूँगा, फिल्म करूँगा वगैरह वगैरह। हमने कहा अबे वो सब तो होता ही रहेगा, तेरे बाप दादा ने तो थोड़ी कुछ उर्दू सिखाई, कुछ और कुछ चीज़ें सिखाई, उर्दू है, फ़ारसी है, शायरी है, इसको क्यों नहीं काम में लाते हो। और ऐसा होता है, देखिए कभी कभी लोग कहते हैं ना कि आज के वक्त जो दुआ मांगे वो कबूल हो जाती, तो मैंने यही दुआ मांगी कि तो दास्तान गोई कर ले, तो वो कबूल हो गई। तो हाज़रीन,